Hello, today we will do chapter 2, class ninth NCRT polynomials, exercise 2.1. Okay, so now, previous video we have done introduction part. So, what is polynomial? First, let us revise it. What is polynomial? Polynomial whose power, polynomial is whose power is non-negative. It means whole number. Power must be whole number or non-negative integer, whole number. Okay, so power is always whole number. It means 0, 1, 2, 3, and so on. Okay, what is polynomial? A polynomial, mm, of an expression, and an algebraical expression whose power is whole number. It means the power must be 0, 1, 2, 3. अगर -1 है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर 1/2 है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि -1 इज नेगेटिव इंटीजर एंड 1/2 इज अ रेशनल नंबर. ओके, सो पॉलिनोमियल हुज power is non-negative integer is a polynomial. Okay, so now what the question number 1 said: which of the following expression are polynomial? Which of the following expression are polynomial? Here is a two question, and in NCRT book there is a five question. When I will do this, then I will write question number 3, 4, and 5. So, which of the following expression are polynomial in one variable, and which are which are not? कौन से इसमें पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के और कौन नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, first we check it is polynomial or not. First we check it is polynomial or not. So पहले हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके बाद वन वेरिएबल. और पॉलिनोमियल अगर है तो किस चीज का, वन वेरिएबल का है क्या? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? विच ऑफ द, कौन सा एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन, दिस इज द टू, वी विल डू 3, 4, 5. विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल. अगर वो पॉलिनोमियल है तो चेक करेंगे कि वन वन वेरिएबल का है या नहीं, और स्टेटमेंट देना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो पॉलिनोमियल होने के लिए चेक करेंगे हम कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं. ओके, लेट अस चेक. सो इट इज 4x² माइनस 3x के पावर 1 प्लस 7x के पावर 0. You can write it. You can write it. Okay. Now, since uh, x is x only variable, सब में क्या है, x है. Since x is only variable and power of x is what is 2 है, 1 है and 0 है. 2 है, 1 है and 0 है, and x is power of x is 2, 1 and 0. So, and it is whole number, and it is whole number. So so given equation r is, this is the one variable, the given equation is polynomial of one variable, polynomial of one variable, okay, polynomial of one variable. Okay, next, here is y² plus √2 y के पावर
1. ओके, y के पावर क्या है? 2 है. y के पावर हियर क्या है? 1 है. ओके, सो y के पावर 2 है और y के पावर 1 है. एंड हियर दिस इज पावर इज 2 एंड पावर इज 1 एंड बोथ आर होल नंबर. इट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल. और दोनों जगह क्या है? नो सॉरी, हियर इज नॉट अ y, so the power is 0. Okay, 2 and 0 is a whole number and the variable is y only. Y only, so it is a polynomial of one variable. The same statement is since since y is only variable, y is only variable, y is only variable and power of y is, and power of y is 2 and 0, 2 and 0, 2 and 0. So it is polynomial. So it is polynomial of one variable. One variable. Okay, I hope so. No confusion. Okay, so next question number 3 and 4. So let us do question number 3 or 4. I hope so. 1 and 2 you understood. So question number third is 3 root t plus t root 2. 3 root t plus t root 2. Okay, so it can be written as 3 t के power 1 by 2 plus t root 2. T root 2. Okay, okay, so the power, it is a one variable. So it is one variable. Since it is a variable, it is, since t is the only variable here, but the power of t is 1 by 2, which is not a whole number. So it is not a polynomial of one polynomial. Okay, so again come to the point. Since t is only variable, t is only variable, but power of t is not whole number, not whole number, not whole number, but power of t is not whole number. Since t is only variable but power of t is not whole number, so given expression is not a, so it is not polynomial, so it is not polynomial, so it is not polynomial. Okay, so it is not polynomial. Okay, next question number 4. So 4 is, again the question number 4 is same, y plus 2 upon y, 2 upon y. So y denominator में ऊपर जाएगा तो minus, so you can write it y plus 2y के power minus 1, y plus 2y के power minus 1. Okay,
ओके, y प्लस टू वाई के पावर माइनस, ओके, सिंस इट इज सिंस y इज ओनली वेरिएबल, इसमें y क्या है, ओनली वेरिएबल है, सिंस y इज ओनली वेरिएबल, सिंस y इज ओनली वेरिएबल, सिंस y इज ओनली वेरिएबल, सिंस y क्या है, ओनली वेरिएबल है, सिंस y इज ओनली वेरिएबल, ओके, बट पावर क्या है उसकी, निगेटिव है, बट पावर इज निगेटिव, बट power is negative, power is negative, so it is, so it is, it is not a polynomial, it is not, it, so it is not polynomial, so it is not polynomial, okay, okay. So now last, this is question number 3 and 4, so the last one is, so let's do the last one. Last one is fifth one. Fifth one is x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t के पावर 50, okay, t के पावर 50. Here you, what you can observe, the how many variables is here, 3 variables, so it is not a one variable, so since since x, y and t are three variables, three variable, three variable, three variable, three variable and three variable and power of x, y and t are 10, 3, 50, 350, which is whole number, whole number, whole number, so it is, so it is polynomial, polynomial of, polynomial, but, so it is polynomial but not a one variable, not a one variable, not a one variable, okay. I hope so कोई confusion नहीं होगा question number 1 में, okay. So now come to the question number 2. Write the coefficient of x square. So what the coefficient, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट, ओके, दैट इज कोफिशिएंट, ओके. सो यहाँ कुछ नहीं है तो ये x के पावर 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x के पावर 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, यहाँ क्या है, 2x के पावर 0, 2x के पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 1 है, तो इट मीन्स कोफिशिएंट क्या होगा इसका, 1 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ओके. सो लेट 2 minus 1 into x square plus 1 into x cube, 1 into x cube, ओके. सो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल माइनस वन नेक्स्ट,
So x square is the coefficient of x square is pi by 2. So your answer is pi by 2. Your answer is pi by 2. Next, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, रूट x माइनस 1. अब एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, तभी तो वो गायब है. अगर एक्स स्क्वायर गायब है या इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को किसने गायब किया, 0 ने, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दे तो बिकम्स वी गेट 0. सो एक्स स्क्वायर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 0. तो कोफिशिएंट इज 0. ओके. Next, come to the question number 3. Give an example of each of the binomial. Give an example of each of binomial of degree 35 and monomial of degree 100. Give an example of each of the binomial. Each कोई एक एग्जाम्पल ऐसे दीजिए जो बाइनोमियल हो. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म. ओके. जिसकी डिग्री क्या है, 35. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ एन गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड अ डिग्री. हाईएस्ट पावर, highest power is degree. Highest power is called degree. Highest power is called degree. Highest power को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. ओके. सो हाईएस्ट पावर अगर इसकी क्या है, x के पावर 6 प्लस 4x के पावर 5 प्लस 3. तो इसमें 5 भी इसकी पावर है, 6 भी है, और यहाँ पे x प्लस 1 अगर मैंने लिखा, इसकी पावर 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन इसका डिग्री कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 6 है. ओके. सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल. फर्स्ट क्या होना चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए. आप कुछ भी बना सकते हो 2 टर्म का, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35. तो आई मेड इट. द फर्स्ट वन इज बाइनोमियल इज, फर्स्ट क्या बनाया हम, 2x के पावर 35 प्लस 5x बन गया. आप कुछ भी 5 ही लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं था x लगाने की. हाईएस्ट पावर आपकी 35 होनी चाहिए और बस. ओके. एंड मोनोनोमियल, इट मींस कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होगा, और उसकी डिग्री कितनी होगी, 100. तो एक ही टर्म है, उसकी डिग्री आप कुछ भी लिख लीजिए. मैंने यहाँ x ले लिया है तो यहाँ y लेके 100 कर दे. ओके. आई होप सो यू हैव नो प्रॉब्लम विथ इट. सो नाउ नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. डिग्री अभी कहा, हाईएस्ट पावर जो होगी उसकी क्या होगी, डिग्री होगी. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 2 1. सो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3. ओके. इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो y के पावर 0 होगा. तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2. इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, क्योंकि t के पावर क्या है, वैल्यू 1 है. यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर. 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 वैल्यू क्या होगी, 1, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 3. सो आंसर इज 0. ओके. एनी प्रॉब्लम? I hope so you have no problem with it. So question number 4 we have done. Now do question number 5, the last question of the exercise 2.1. Okay. So now the question number 5 is classify question number 5. Classify the following. Classify the following as linear, quadratic, and cubic polynomial. ओके. क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. जो क्लासिफाई करो, जो गिवन वो दिए हुए हैं, नंबर दिए हैं, दैट इज फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस x. x स्क्वायर प्लस x. x स्क्वायर प्लस x है, प्लस x. सेकेंड आपका है x माइनस एक्स क्यूब. थर्ड है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. फोर्थ है आपका 1 प्लस x.
फिफ्थ है 3t, 6 है आपका r स्क्वायर, एंड सेवेंथ है आपका 7x क्यूब। ओके, अब मुझे ये जो 7 क्वेश्चन दिए हैं इसको मुझे बताना है कि लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्यूबिक क्या होगा। तो लेट अस रिवाइज। लीनियर क्या होता है, उस पावर इज 1, लीनियर पावर इज, हियर इज लीनियर पावर इज 1। पावर क्या होनी चाहिए इसकी, सॉरी नॉट अ पावर, डिग्री, डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी 1 होनी चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर इसकी क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, इट मींस डिग्री विल बी, डिग्री शुड बी 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री शुड बी 3। तो हमें चेक करना है कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक। आई होप सो इट इज इजी फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट। हियर द हाईएस्ट पावर इज 2, highest power is 2. The answer will be quadratic polynomial. Quadratic polynomial. It is easy. It comes on 1 marks or as a MCQ. Quadratic polynomial. यहाँ x की पावर क्या है 1 है और यहाँ x की पावर क्या है 3 है। सो 3 इसकी क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री इसकी क्या है 3 है, तो इसका क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ y के पावर 1 है, y के पावर 2 है और यहाँ y के पावर क्या है 0 है, 1 2 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1x के पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, सो x के पावर क्या है 0 है और x के पावर क्या है यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, हाईएस्ट पावर इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट 3t, पावर क्या है इसका 1 है, सो लीनियर पॉलिनोमियल।